which are on TDS in the new Income Tax Act. I would request everyone on my left hand side, you can come in the center, we have space here, so that you will be able to see the PPT and the speaker very clearly. With this, we have certain important provisions of TDS, which will be taken over by our very own convener of Borivali Study Circle, CA Ravi Soni sir. And he genuinely requires no introduction, but then too I will request Sandeep Bhai to kindly introduce the convener of Borivali Study Circle and the speaker of today's session, CA Ravi Soni. Viral Bhai has rightly said, just like our earlier speakers, Nihar Bhai and Avinash Bhai, Ravi Bhai also does not require a introduction. He is our convener of our own study circle. He is, just to give you brief introductions, he is academically BCom, MCom, Chartered CA, DISA, FAFP and CCA of ICI. He is also registered valuer and he has also cleared a CFA level. He is earlier he has worked as a research analyst in the CRISIL Limited, and right now he is a managing partner in his own firm RJ Soni and Associates, Chartered Accountant 2011, and their offices are at Bombay, Delhi, Jaipur, Bangalore and Pune. He is convener of our convener and core committee members of the Borivali Study Circles, and he is serving study circle since very long. He is a founder trustee of the Manavta Charitable Foundations and have been invited on a speaker and honored by the various institutions including the WRC, SIRC, ICI, Income Tax Department, Indian Navy, New India Assurance Company and various banking for the TDS chapter and other income tax matters. So please we welcome Ravi sir to, and I will request Mr. Viral to give the memento and the benevolent fund receipt. Over to Ravi Bhai. Thank you, Sandeep Bhai. Thank you, Viral Bhai. See, in New Income Tax Act, it is applicable from 1st April 2026. The major changes, I will say, conceptually, there is not much changes in TDS provision. However, structurally, there are very, very big changes in TDS. Because earlier, the concept was for each specific nature of income, there were standalone sections were there. But now, in this new provisions or new act, there would be only single section. And instead of giving different sections, they have consolidated everything in one section and they have provided a table. So, instead of referring different section, one single section, refer a table and then you can come to conclusion. So, in New Income Tax Act, instead of sections, we have the tables, and on the basis of table, we can identify what would be the threshold, what will be the TDS rate. So, conceptually wise, everything is same. Structural wise, major shift is there. Income tax, in New Income Tax provision, Chapter 19 covers the TDS provisions. Like earlier, Chapter 17 covers the TDS provision, but in New Income Tax, Chapter 19 covers. Chapter 19 covers the sections from 390 to 420, and from 390 to 396 and 98 are the specific sections which are applicable for TDS. So first, 390 is general administrative or general enabling provision.
391 is direct tax payment. 392 is a salary. Like 192, it was in old income tax, it was section 192. However, in new income tax, it is 392. All the there is not much changes in this. Only from 1 to 3 has come. However, for section 393, it contained the details of all other non-resident, non-salary payment. Whether it is resident, whether it is non-resident, everything comes under one single section. 394 refer for a TCS, like 206 1C was there for TCS. Same way over here, 394 a separate section is there. So in old framework, multiple dedication section was there. In new framework, single section, table based specification. In table also, they have divided 4 to 5 different tables. So section 390. 390 is just an applicable provision which says that TDS is deductible, TDS mechanism. 391 says that whenever the person on whose income the TDS is not deductible, however it is taxable, then the person is required to pay taxes. Earlier it was a concept, many people were under the impression, agar iske upar TDS nahi kata hai, that means the income is exempted. But now it has specifically specified that if the TDS has not been deducted, either since there is no other provisions or the person has failed to deduct the TDS, then the person who has received income is liable to pay the taxes. He can directly pay the taxes. 392 exclusive provisions for employment. जैसे 192 था, same way 392 है. Everything is same. जैसे core monetary salary allowances, value of the perquisite, employer paid taxes on perquisite. So all the provisions, there is not much changes in the provisions part. The section number has changed. From 192, it has become to 392. 393. This is the most important section. Why it is the most important section? Because major would be covered under this section only. All the TDS provisions other than salary are covered under this. So this time what department has done? They have divided the TDS section or TDS section in 3 different tables. First, when the payment is paid to only to a resident. So all the sections which were applicable to resident are consolidated in table 1. Though the threshold limit, TDS rate, everything same. However, instead of giving different section number, it has covered only one single section. Then table 2. Table 2 contains the detail of payment or TDS provisions which is applicable to a non-resident. So all the specific provisions which are only applicable to a non-resident are covered in table 2. Table 3 is a universal table where there is no bifurcation whether the person is resident, receiver is a resident or non-resident. So all those provisions where the receiver is not defined, receiver can be anything, any person. He can be resident also and he can be non-resident also. For example, for 194N, if the person is resident also, then also section 194N is applicable. If the person is non-resident also, then also section 194N is applicable. So they have divided all the provisions in 3 different sections. First, wherever the TDS is applicable to a resident. Second, wherever the TDS is applicable to a non-resident. Third, wherever the payment or TDS is applicable to universal, common. He can be non-resident also, he can be resident also. Then a 4th table is a table which in this table they have consolidated all the exemptions. Currently what happened that over the year department has issued numerical circulars. Circular 715, circular 714 for various exemptions. So it become very difficult for any person to track whether this income is whether on this TDS provision would be applicable or not. So everything has been consolidated in table 4. So जितना भी exemptions रहेंगे वो सब table 4 में आ जाएगा. Exemption हो गया,
या फिर लोअर डिडक्शन हो गया, या फिर इवन 15G 15H, उसके प्रोविजन भी टेबल 4 में आ गए. एंड टेबल 5 कंटेन द डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट्स. सो जो पूरा अपने ओल्ड इनकम टैक्स के अंदर जो सेक्शन 192 के बाद का जो भी प्रोविजन है वो सब एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन में कंसिडर कर लिया. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला था कि हमने इनकम टैक्स एक्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1/3 कम कर दिया है. तो ये 1/3 या लाइक इफ दे कंपेयर इट बाय वर्ड वाइज दे आर सेइंग दैट 1/3 हमने कम किया है. मेजॉरिटी ऑफ दी जो लैंग्वेज कम हुआ है वो हुआ है इस एक सेक्शन के अंदर. इफ यू कंपेयर पहले जो था 192 से लेके अलग अलग डिफरेंट सेक्शन या डिफरेंट सर्कुलर, इट वाज गोइंग अप टू मोर देन 40-50 पेजेस. बट ये जो है ये सिर्फ 18 पेजेस के अंदर आपको कंसाइज बना के दे दिया है, सो दैट इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड. और एक सिंगल पॉइंट दे दिया है, आपको अलग अलग जगह देखने की जरूरत नहीं है कौन सा सर्कुलर एप्लीकेबल है, कौन सा सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं है, एग्जेम्पशन अवेलेबल है या नहीं है. आपको एक सिंगल टेबल दे दिया है, सिंगल ये दे दिया है. सो अगर डिपार्टमेंट को कुछ अमेंडमेंट में लेके आना है तो खाली वो टेबल नंबर के अंदर नंबर इंक्रीज हो जाएंगे. So, table 1 contain the details of all the payment paid to resident, be it commission, brokerage, contract to work, contract for work and services, professional and technical. Threshold and section, TDS rate are same only. It has not been changed. Only if this section has been changed. This is a brief reference of the table. In the left side, I have given the table number 1, 2, 3, 4, and in the right side I have given the section number. अपने प्रीवियस सेक्शन नंबर कौन से एप्लीकेबल थे, जैसे इंश्योरेंस कमीशन है 194D, अब वो आ गया 1.1. सेम वे अदर कमीशन है 1.2 जो 194H था, रेंट है 194. सो दिस इज द सिंपलर वे टू अंडरस्टैंड. आपको एक कंपेरेबल दे दिया है कि ये टेबल पॉइंट है, ये सेक्शन नंबर, पुराना सेक्शन नंबर ये था. वन कैन इजीली गो थ्रू इट. Table 2, payment to a non-resident. Table 2 addresses the complex area of the TDS payment on non-resident. So all the other provisions which were applicable, like 194E, 194LC, 194LB, 194LBBA, तो ये सब provisions जो है ये सब एक ही कंसोलिडेटेड टेबल 2 के अंदर आ गया. तो सेम वे इसमें भी आपको टेबल पॉइंट नंबर दे दिया है कि कौन सा टेबल का कौन सा सीरियल नंबर है, और ऑन द राइट साइड आपको सेक्शन नंबर दे दिया है. सो इफ एनीवन वांट टू अंडरस्टैंड, ये सेक्शन से वो को रिलेट कर सकता है. टेबल 3 इज रेसिडेंट न्यूट्रल टीडीएस प्रोविजन. व्हाई रेसिडेंट न्यूट्रल प्रोविजन? क्योंकि इसके अंदर अपन रेसिडेंट का स्टेटस चेक नहीं करते पेई का. ये सब प्रोविजंस के लिए रेसिडेंट स्टेटस चेक नहीं करेंगे, एप्लीकेबल है तो डायरेक्टली टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा. तो गेमिंग एंड गैम्बलिंग हो गया, कैश ट्रांजैक्शन हो गया, पार्टनरशिप इनकम हो गया, जो नया प्रोविजन आया है 194S, तो वो वेदर द पार्टनर इज रेसिडेंट ऑल्सो और नॉन रेसिडेंट ऑल्सो, वो सेम प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा. टेबल नंबर 4 contain the details of all non-deduction and declaration. It summarize all the circular also. जो पुराने सर्कुलर के अंदर जो जो स्पेसिफिक एक एक एग्जाम्पशन दे के रखा हुआ था वो सब सर्कुलर कंसोलिडेट कर दिया है. इवन इट ऑल्सो कंसोलिडेट ऑल द प्रोविजंस के अंदर एक एक लाइन से एग्जाम्पशन दे के रखा हुआ था कि स्पेसिफिक एंट्री इज नॉट एग्जेम्प्टेड, इज एग्जेम्प्टेड अंडर दिस सेक्शन, तो वो इसी के अंदर दे दिया है. In 393, they have given one more section now, which is applicable only and only for interest income, interest other than source, interest other than this section 194A. तो जो पहले section 194A में भी ये provision था that the TDS rate or TDS can be increased or decreased during the year. If for a particular period, if the TDS is less, then during the year it can be increased or it can be adjusted. तो ये एक प्रोविजन कंटिन्यू किया है सेक्शन 393 में भी, बट इसके अंदर बोल के रखा हो कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंटरेस्ट इनकम. सेक्शन 394 कलेक्शन एट
collection of tax at source. So TCS जो बोलते हैं, TCS has been incorporated in single section 394. Same way over here also a tabular format is given. Different alcoholic liquors, scrap material, forest, motor vehicle, overseas remittance, lease and resources. So all this transaction TCS would be applicable. जो TCS का पुराना provisions है, everything has been carried forward in this new provision. Section 398 contained the detail of consequences of non-compliances. जो earlier 201 जो था, same section इसमें ये हो गया है. Deem SSC would be default. Mandatory interest of 1% if the TDS has been non-deducted or late deduction, or 1.5% where the delay in payment of deduction. The TDS has been deducted but not deposited. Section 399 is a processing that TDS and TCS statement would be processed. It contains all the provisions regarding the processing. However, one important change in this section is that the time limit. If you notice the time limit, earlier, last year, I would say from 1st April 2025, the time limit of filing the correction return was limited to 6 years. Right? From this financial year, they have limited. Earlier, there was no time limit. 2007-8 का भी आप रिवाइज कर सकते थे, कभी भी आप जब चाहे आपको तब रिवाइज कर सकते थे. But from 1st April 2025, they have limited to 6 years. And now, in this new income tax, they are now limited only to 2 years. So अब जो करेक्शन स्टेटमेंट जो फाइल करने का है वो सिर्फ 2 साल का ही रहेगा. 6 साल से रिड्यूस कर लिया 2 साल. It is a welcome step only because we have seen many a time after filing of our income tax return, some person has changed the return rate. Or if they want to add the PAN number also, डिडक्टर सिंपली बोलता है हमने पैन नंबर ऐड कर दिया है, आप क्लेम कीजिए. बट 4 साल बाद क्लेम करना इज नॉट पॉसिबल. डायरेक्टली क्लेम करना इज नॉट पॉसिबल. आपको अगर क्लेम करना है तो आपको आरटीआई सब फाइल करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लेम मिलेगा. नॉट अ सिंपलर प्रोविजन. अगर आपको आज 5 साल पहले का टीडीएस अभी क्लेम करना है तो इट्स नॉट सिंपल, क्योंकि आप रिटर्न के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है तो आप ब्रॉड फॉरवर्ड भी नहीं दिखा सकते. अगर ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं दिखाओगे तो आप क्लेम कब करोगे? पुराना रिटर्न आप रिवाइज फाइल नहीं कर सकते. वो फाइल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आरटीआई या फिर आपको पीएमओ में कंप्लेंट करना है, तब जाके डिपार्टमेंट उसके ऊपर कुछ एक्शन लेता है और आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट देते हैं. बट अब ये है 2 साल का क्लॉकिंग पीरियड कर दिया. 2 साल के पहले बाद आपको कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं है. तो डिडक्टर कैन नॉट फाइल अ करेक्शन स्टेटमेंट. तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है. Section 400 is just a provision which provide the power to central government to issue any notification, to issue any relaxation, or if they want to issue any guideline on the basis of this section, they can issue it. Section 401, it laid out a core principle that when the tax is deductible under Chapter 19 and if the SSE cannot have already paid directly, then TDS provisions की जो penalties provisions है वो applicable नहीं रहेगा, जो 201 के अंदर पहले से डिफाइन किया था. 26B का अपन जो एनेक्चर लेते हैं तो वो एक बना के रख दिया है कि if the SSE has already paid, then the deductor would not be considered as a SSE in default. And section 402 is a definition section. जितने भी सब चीज की डेफिनेशन एक पर्टिकुलर सेक्शन, पहले अपने इस पुराने सेक्शन में क्या किया हुआ था, सेक्शन 2 था. सेक्शन 2 वाज अ कॉमन सेक्शन जिसमें सारे डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन देके रखे हुए थे. बट नाउ सेक्शन 402 इज देयर वेयर ऑल द इंटरप्रिटेशन इज देयर. कि ये चैप्टर के जितने भी इंटरप्रिटेशन है वो सारे चैप्टर 402 के अंदर मेंशन किया हुआ है. नाउ दिस इज द मेजर इम्पैक्ट. See, provision wise, I told that provision wise not change, structural wise there is major impact is there. Why this major impact is there? Because on the basis of this, the department is also coming up with TDS 2.0.
which would be applicable from 1st April 2026. So why, now what is the changes in that? See, in TDS 2.0, they are emphasizing on online compliance, real-time data reporting. They may come up, they are planning to come up with a real-time data reporting, robust digital infrastructure for seamless TDS and TCS operation. How this real-time data reporting would be there? See, for banks and for big entities, they have already directed all the companies that all the data which they are on which the TDS has to be deducted, they need to upload through API on a daily basis. तो जैसे ही वो डेटा अपलोड होएगा डिपार्टमेंट में, वो डिडक्टी को रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. सो ऑन अ रियल टाइम बेसिस अ डिडक्टी कैन वेरीफाई कि उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है. अभी अपने जीएसटीआर के अंदर व्हाट वी आर डूइंग, ई इनवॉइस फाइल करते हैं. ई इनवॉइस कंपलसरी किया है. ई इनवॉइस से क्या हो रहा है, सामने वाले के 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है. नॉट नेसेसरी जीएसटीआर 1 फाइल हो या ना हो, ई इनवॉइस के अंदर डायरेक्टली डेटा जीएसटीआर 1 का डेटा अपलोड हो जाता है. सेम वे ओवर हियर, इंस्टेड ऑफ ई इनवॉइस they are giving API access to the deductor, mostly to the big deductor, not small. Currently they are planning only to a big deductor. Then from next to next financial year, they may target to small deductor. So API integration say it will happen that all the deductee details on which TDS is required to be deducted, वो automatically either on a monthly basis or either on a daily basis or on a couple day basis or a fortnightly basis, it will upload it to the income tax department. Department will verify on that spot only whether any short deduction is there or not. और वो उसी टाइम हाईलाइट कर देगा. तो शॉर्ट डिडक्शन आया तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा. सी, ये जो रिपोर्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिज्म दे रहे हैं डिपार्टमेंट अपने को, सो दैट अगर अपने को मंथली डेली अपना अपलोड करना है, या कभी कभी कोई ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जो वन टाइम ट्रांजेक्शन है, पर बिकॉज ऑफ दिस क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग वी आर नॉट बीन एबल टू फाइल दैट रिटर्न. तो उसके लिए फिर जैसे नॉन रेसिडेंट से आपने कोई फ्लैट परचेज किया तो उसका टीडीएस डिडक्ट करना था आपको साल में एक, मतलब पूरे लाइफ टाइम में एक ही ट्रांजेक्शन है. आपने अगर जनवरी में टीडीएस डिडक्ट किया है, मई तक रुकना पड़ेगा आपको जब तक वो टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं होता. उधर वो नॉन रेसिडेंट सेलर जो है वो आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा कि मेरे को सर्टिफिकेट दो या खुद तो प्रूफ दो कि आपने टीडीएस डिडक्ट किया. तो ये सब मैकेनिज्म के लिए इन्होंने रियल टाइम बेसिस कर दिया है. आप रियल टाइम बेसिस पे उसको फाइल करो 26AS के ऊपर. 26AS सेम रहेगा जैसे AIS है वैसे ही रहेगा, उसके ऊपर उनका रियल टाइम बेसिस पर रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा. एंड डिडक्टी कैन वेरीफाई कि हाँ टीडीएस जो डिडक्ट हुआ प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ. टीडीएस चालान पेमेंट वुड बी सेम मंथली बेसिस. टीडीएस रिटर्न फाइलिंग वुड ऑल्सो बी सेम ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. सिर्फ आपको अपलोडिंग करने का दिया हुआ है कि ऑन अ डेली बेसिस और फोर्टनाइटली बेसिस आप अपना डेटा रिटर्न अपलोड कर सकते हो. वो डेटा वहां पर अपलोडेड रहेगा. जब तक आप क्वार्टर एंड में सबमिट नहीं करते तब तक वो सिर्फ ऑन अ प्रोविजनल बेसिस में अपलोडेड रहेगा. तो जो वो डिडक्टी है उसको एज ए प्रोविजन बेसिस पर टीडीएस रिफ्लेक्ट किया जाएगा कि इतना आपका टीडीएस रिफ्लेक्शन है. सो रीडिफाइन द डेफिनेशन थ्रेशोल्ड. पहले थ्रेशोल्ड जो था अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड था. नाउ दे हैव डिवाइडेड द थ्रेशोल्ड ओनली इन 4 और 5 टर्म्स, आइदर 10,000, 50,000, 20,000. 3 या 4 टर्म्स ये सब सेक्शंस का मिला के 3 डिफरेंट या 4 डिफरेंट टाइप के थ्रेशोल्ड है. टीडीएस रेट भी जो है वो भी उन्होंने आइदर 2, 10 एंड 20 वैसे रखा हुआ है. इन बिटवीन जो सेक्शन से 15% था, 5% था, वो सबको कंसोलिडेट कर दिया. So the compliance now with the enabling of 2.0, they are coming up with the advanced data analytics. तो जो भी आपका डेटा अपलोड हो रहा है, they are very on a frequent basis, they are tracking out it on, they are doing the analysis कि कौन से डेटा पे क्या हो रहा है. अगर आपने किसी पर्सन के इसमें शॉर्ट डिडक्शन था, 10% डिडक्ट करना था या 20% डिडक्ट करना था, आपने 10% डिडक्ट किया, रिवाइज किया, आपने खाली अमाउंट पेड चेंज कर दिया. नेक्स्ट विद इन 15 डेज
आपको नोटिस आ जाएगा कि आपने खाली अमाउंट पेड चेंज क्यों किया है। इतना उन्होंने एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है कि जहां पर खाली आप अमाउंट पेड चेंज कर रहे हो या आप डेट ऑफ डिडक्शन भी चेंज कर रहे हो तो भी आपको नोटिस आ जाता है। नोटिस मीन्स दे आर आस्किंग द क्लैरिफिकेशन, व्हाई आर यू चेंजिंग दिस अमाउंट। सो एनी डिटेल्स ऑन विच, बिकॉज ऑफ विच द डिमांड इज चेंजिंग, they are tracking on it and they are issuing the notices on a day to day basis। तो यही इन्फोसिस के साथ इन्होंने न्यू टीडीएस प्रोविजन भी वैसे रखे और जो नया 2.0 आया है उसके अंदर भी दे आर फोकसिंग ऑन दैट। अभी करंटली क्या होता था, टीडीएस रिटर्न व्हेन वी आर फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न, तो जब भी आप करेक्शन रिटर्न फाइल करते थे तब वो पूरा रिटर्न फिर से रीप्रोसेस करता था। आप एक छोटी एंट्री चेंज करते थे या नेम के अंदर या पैन नंबर, 1% का डिडक्टिव का पैन नंबर चेंज किया, तब वो पूरा रिटर्न रीप्रोसेस करता था। तो जहां पर छोटे रिटर्न है वहां पर इसका इशू नहीं पड़ता था, पर जहां पर बड़े रिटर्न है वहां पर इसका इंपैक्ट बहुत पड़ता था। अभी जैसे जिस एंट्रीज के 10,000 या 1 लाख एंट्रीज है वहां पर उसको एक एंट्री चेंज किए तो 10,000 लाइन आइटम को रीप्रोसेस करना, इट इज टाइम कंज्यूमिंग फॉर देम। बट 2.0 के अंदर दे आर कमिंग अप विद द प्रोविजन दैट जो लाइन आइटम में चेंज है खाली वो लाइन आइटम चेंज होगी। सो द प्रोसेसिंग वुड बी वेरी क्विक। आपने सुबह फाइल करेक्शन फाइल किया, विद इन एन आवर आपका करेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर आपका करेक्शन दैट्स वाई देगा मेरे कि रियल टाइम बेसिस पर करेक्शन रिफ्लेक्शन भी रियल टाइम बेसिस पर होगा। ऑनलाइन करेक्शन ऑन अ रियल टाइम बेसिस। अभी अपन टीडीएस रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर, बट इन 2.0 दे आर अलाउइंग इट ऑन ट्रेसेस वेबसाइट इटसेल्फ ओनली। जो नया जो ट्रेसेस वेबसाइट रहेगा वहां पर आपको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। उसमें भी दे आर गिविंग द सिस्टम एट 1 क्लिक ऑटोमेटिकली रिटर्न बन के आएगा। बिकॉज अगर आपने एपीआई के थ्रू डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शन अपलोड कर दिया है तो आपको सिर्फ रिटर्न डाउनलोड करना है, वेरीफाई करना है और सबमिट करना है। जैसे आज के तारीख में अपन अपना जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 के अंदर जनरली अपन मंथ एंड के अंदर पूरा रिटर्न फिर से नहीं बनाते, प्री वैलिडेटेड रिटर्न बन के आता है, यू जस्ट वेरीफाई इट, चेक इट एंड आप अपलोड कर देते हैं। सेम वे ओवर हियर आपका पूरा रिटर्न बन के आएगा, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है, चेक करना, सबमिट करना है। अगर आपका कोई चेंज भी नहीं है तो आपको ऑनलाइन डायरेक्टली क्लिक करना रहेगा, आपको आरपीयू का भी जरूरत नहीं रहेगा। जो एफयू जो बोल रहे हैं अभी नाउ डेज करंटली अपन क्या यूज करते हैं, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बट स्मॉल डिडक्टर के लिए कोई सॉफ्टवेयर भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, डायरेक्टली बना हुआ रहेगा। आपको बस वेरीफाई करना है, चेंज करना है, अपलोड करना है। कंपैरिजन सेक्शन फॉर सैलरी 192, 392, नॉन सैलरी डिफरेंट मल्टीपल सेक्शन, सिंगल सेक्शन, अनडिफाइंड टेबुलर बेस, structural approach, section wise, earlier section wise there, now table wise there, tax collection at source, TCS it was mentioned in 206C, now 394. So the fragmental section across the chapter now consolidated and streamlined with the logical flow. So now it is easier for us to make the reference. Earlier different circular was required, different section we need to see कि 194C के अंदर क्या provisions है, उसके कौन से उसके circular कौन से है। Now only single table, single circular. Any doubt till now? Rates are same, everything are same. जो भी रेट चेंज करने थे वो उन्होंने लास्ट ईयर चेंज कर दिए। जब वो अपना फाइनेंस बिल आया था लास्ट ईयर का, तब उन्होंने सारे चेंजेस कर चुके हैं। नाउ ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस देयर, एवरीथिंग सेम। ड्यू डेट ऑफ द टीडीएस पेमेंट इज सेम ओनली, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग डेट इज सेम, इवन द सर्टिफिकेट इशू दैट इज ऑल्सो द सेम प्रोसेस, एवरीथिंग वुड बी सेम। द ओनली थिंग इज दे which time? Accounting year is 31st March only.
ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। जो पहले 7 तारीख था 7 तारीख रहेगा ओनली फॉर द मंथ ऑफ मार्च, इट इज 30th अप्रैल। तो वो ड्यू डेट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ प्रोविजन वाइज उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। डिपार्टमेंट का एक ही व्यू था कि हम ज़्यादा चेंज नहीं लाना चाहते, जो लोगों के कॉन्सेप्ट में बैठा हुआ है वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ उसको रिप्रेजेंटेशन तरीका इजी करना चाहते हैं। दे वांट टू सिंपल मेक इट सिंपलर फॉर द यूजर। यस सर। यस सी TDS 2.0 जो है ना वो दे आर प्लानिंग दैट 15 जनवरी से दे आर स्टार्ट विद द डेमो API। तो और ये TDS 2.0 का जो है वो स्ट्रक्चर पूरा अलग है। हाँ, LDC के अंदर ये ना लिटिल थोड़ा बहुत इशू आएगा, बिकॉज उसमें भी वो लोग ने 2-3 सर्कल चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी मुझे अगर 100 लोगों का LDC लेना रहता था तो एक कंसोलिडेटेड LDC आता था जिसके अंदर कोई बाइफर्केशन नहीं रहता था, कौन कौन डिडक्ट है कुछ नहीं मेंशन किया जाता था, एक कंसोलिडेटेड और एक कंसोलिडेटेड लिमिट। तो डिडक्टर को इशू आता था कि मेरा लिमिट कितना है। अगर आपने देखा रहेगा जहां पर भी बड़ा LDC है, जैसे अगर PwC ने लिया अपने क्लाइंट्स के लिए, मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए, तो उसको एक ही LDC दे दिया, वो अक्रॉस अपने क्लाइंट के लिए यूज कर सकता है। बट वो अमाउंट कितना यूटिलाइज हुआ है कितना नहीं हुआ है वो डिफिकल्ट था। सो नाउ इन 2.0 दे आर कमिंग अप that they are going to issue a single LDC, but they are going to authorize the deductee कि आप अपने हिसाब से डिडक्टर वाइज ना कैलकुलेशन बढ़ा दीजिए और वो कैलकुलेशन डिडक्टी को रिफ्लेक्ट होगा। लिमिट वुड भी, तो डिडक्टी का जो लिमिट है वो डिडक्टी खुद डिफाइन कर सकता है कौन से डिडक्टर के लिए कितना लिमिट रहेगा। यस See, it would be compulsory, it would not be a compulsory one. 50 जो API जो आ रहा है वो जनरली दे आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पैचेस फॉर्मेट कि पहले वो लोग बड़े डिडक्टर को टारगेट कर रहे हैं। तो जो बड़े डिडक्टर है उनके लिए, जैसे अभी आपने देखा रहेगा GST के लिए भी API है, बट वो API कौन यूज कर रहे हैं? जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनको वो लोग API यूज कर रहे हैं। जो अपने छोटे क्लाइंट्स है वो कोई API यूज नहीं कर रहे हैं। तो API वुड नॉट बी कंपलसरी, ये एक ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे GSTN का कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग GSP बना के रखा हुआ है उन्होंने, सेम कॉन्सेप्ट दे आर कमिंग अप विद TDS ऑल्सो। इसमें भी TSN वो लोग बोलेंगे कि जहां पर अलग अलग GSPN के जैसे TSPN बना के देंगे, वो अपना अपना API यूज करेंगे डिपार्टमेंट के API से लिंक करने के लिए। तो इट वुड नॉट बी कंपलसरी, इट इज एन ऑप्शनल पार्ट। आपको अगर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, वरना गवर्नमेंट अपना एक फ्री डेमो सॉफ्टवेयर भी रहेगा। हाँ, इन नियर फ्यूचर जो NSDL का जो रोल है वो और कम हो जाएगा, क्योंकि अभी आज के तारीख में जितने भी स्ट्रक्चर चेंज आते हैं पहले NSDL उसका FU बनाता है, उसके बाद वो सारे सॉफ्टवेयर वेंडर को बोलता है कि ये चेंजेस किया है और बाकी सॉफ्टवेयर वाले वो चेंजेस के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करते हैं। बट नियर फ्यूचर NSDL का रोल जो है वो कट डाउन हो सकता है। टिल नाउ नो, दे आर कमिंग अप विद द कॉन्सेप्ट। अभी तो सिर्फ जो भी API रहेगा वो गवर्नमेंट खुद देगा। सी जो +1 -1 का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट किसके लिए आया था? बिकॉज TDS रिटर्न अपन फाइल करते हैं ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस। कभी भी आप TDS रिटर्न फाइल करोगे आप फाइनेंशियल बोलोगे कि फाइनेंशियल 25-26 का आपने TDS रिटर्न फाइल किया, आप कभी भी असेसमेंट ईयर नहीं बोलोगे। हाउएवर देयर वाज कॉन्सेप्चुअल एरर ऑन द डिपार्टमेंट साइड कि जब वो TDS चालान पे करते हैं तो असेसमेंट पूछता है। तो देयर वाज अ कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन रिटर्न एंड चालान, कि चालान आप पूछ रहे हो असेसमेंट ईयर वाइज बेसिस, रिटर्न आप पूछ रहे हो फाइनेंशियल ईयर वाइज बेसिस।
तो उसकी वजह से बहुत डिफरेंस आ रहे थे, इश्यूज आ रहे थे। तो वो इशू को सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने +1 -1 का कॉन्सेप्ट अलाउड किया था। इन नियर फ्यूचर आई डाउट के चलो 1 or 2 years दे विल अलाउ, आफ्टर दैट वंस द पब्लिक इज फेमिलराइज विथ फाइनेंशियल ईयर कॉन्सेप्ट तो उसको अलाउ कर देंगे। या फिर जैसे वो जीएससीए के अंदर कॉन्सेप्ट है कैश लेजर सिस्टम, इन दैट वे दे मे कम अप इन द TDS ऑल्सो कि एक बार कैश लेजर में आ गया तो आप लाइफ टाइम कभी भी यूज करिए। Mostly all the circulars they have covered in these provisions. See, they have tried to cover according to them, but there may be some, because there are many circulars which they have issued which department themselves are not aware right now. So there may be, अगर आपने को कोई specific provisions or specific circular is applicable and if you are not been able to find in the table, then unless until it is specifically mentioned कि this circular is redundant, we can utilize it. क्यों ये जो अभी सेक्शन अभी जो आया एक्ट वो it will take 1 or 2 years to settle down. There are many gaps in the interpretation also and in the tables also. There are many gaps means कि कुछ they have missed. अब they have missed either intentionally or unintentionally. Intentionally means कि एक कुछ किसी के अंदर कुछ बेनिफिट पहले दे के रखा हुआ था, अब नहीं दिया है, तो वी आर नॉट क्लियर कि वो क्या है ना, उनको देना है या नहीं देना है। For this financial year, it will for next financial year it will be applicable unless until they don't specifically clarify it कि ये सर्कुलर रिडंडेंट हो गया है। Any other queries, sir? So major takeaway, there is structural reform, no policy reform. Section 2025 Act recognizes the existing provision without fundamentally altering the TDS rates or coverage. Substantive tax policy remain largely consistent with the establishment. The consolidated structure reduces the ambiguity and minimize the interpretation dispute. क्योंकि अभी एक ही टेबल देके रखा है, सारे everything has been included in one. The simplifies day-to-day compliances for taxpayer and practitioner alike. Section 393 table-based approach eliminate the need to navigate multiple sections while maintaining the necessary detail and specify for the different transaction type. Tax professional must transition for the memorizing. For tax professional, it is easier for us instead of अलग-अलग सेक्शन नंबर याद करने से अच्छा एक टेबल, इट इज इजियर, और एक टेबल का खाली प्रिंट आउट निकाल के रख दिया, जैसे अपन एक रेट चार्ट का लिखते थे वो अपन अपने टेबल का एक प्रिंट आउट निकाल के रख दिया, यू कैन जस्ट इजीली वेरीफाइड। जैसे किसी को एग्जाम्पशन भी देना है, टेबल 4 का प्रिंट आउट है, वी कैन जस्ट वेरीफाइड वेदर वो एग्जाम्पशन अवेलेबल है या नहीं है उसको। So near future, the department's main focus is that everything should be online and everything should be systematic in a proper or in a digitalized ways. Since it is in a digital ways, it is easier for department to analyze it. Currently, department is more focused on data analytics. जो भी data we are filing it, we are changing it, amending it afterward. They are keeping a track on it. So I always support कि अगर आपको corrections करना है तो be sure कि आप proper कीजिए। आपने एक बार रिटर्न में फाइल में 10 का 20 किया हुआ है, it doesn't make an issue. But corrections के टाइम अगर आपने गलत बिल्कुल भी corrections किया, department will come on you क्योंकि वो एक एक चीज ट्रैक ऑन कर रहा है। अगर आपने 20% जहाँ पर शॉर्ट डिरेक्शन है वहां पर आपको एक्चुअल शॉर्ट डिरेक्शन पे कर अमाउंट पे चेंज करके एडिशनल शॉर्ट डिरेक्शन अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। सो देयर इज नो शॉर्टकट कि चलो मैं ये तरीके से डिफॉल्ट अमाउंट कम कर दूं, बिकॉज डिपार्टमेंट इज कीपिंग ट्रैक ऑफ इट। या
सी बिलेटेड रिटर्न दे हैव करंटली आई विल से कि ये जो 2 years का जो अप्लीकेबल रहेगा ना, वो मोस्ट प्रोबेबली बिलेटेड रिटर्न के लिए भी आएगा, बिकॉज आफ्टर दैट अभी जैसे 18-19 का है, इफ आई वांट टू फाइल द 18-19 रिटर्न, एनएसएल के अलावा एनएसएल इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, इनकम टैक्स पोर्टल पर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं 18-19 का रिटर्न आज की तारीख में नया रिटर्न फाइल करना चाहता हूं तो एनएसडीएल टिन एफसी सेंटर इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, और सेम वे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर 18-19 के पहले के रिटर्न का कोई ऑप्शन ही दिया हुआ है। तो सेम वे इट मे बी एप्लीकेबल फॉर न्यू रिटर्न ऑल्सो। प्रोविजंस आर सेम ओनली, लेट फीस का जो 234E का जो प्रोविजंस है सेम रहेगा, 200 रुपीज एप्लीकेबल रहेगा। प्रोविजन वाइज पेनल्टी वाइज एवरीथिंग इज सेम, तो वो चेंज नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग बोलते ना कि एक पैकेजिंग चेंज कर दिया है। अभी आज के तारीख में जो दिखता है वो बिकता है, तो उसको थोड़ा लिक्विडेटिव बना दिया है कि पहले अलग अलग सेक्शन दिखाते थे, अब वो उसको फैंसी टेबुलर फॉर्मेट में दिखा दिया है। यस सर। फोर्टी आई ए के अंदर आई एम नॉट श्योर, बिकॉज टीडीएस मोस्टली आई एम नॉट श्योर, बट ये है कि कुछ चेंज नहीं आ रहेगा। नो चेंज, कंफर्म भी हो गया। So any query regarding TDS? Yeah. Yes. So इस केस में ना दी ITR के अंदर कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड का ऑप्शन देके रखा हुआ है। आप जैसे आई विल से 25-26 के अंदर आपका TDS डिडक्ट हुआ है और आपको इनकम मिला है 26-27 के अंदर, तो आप अपने 25-26 के रिटर्न के अंदर उसको दिखा सकते हो कैरी फॉरवर्ड एंड देन ब्रॉट फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड। सेम सी वो सब सेम है, सिर्फ जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है कॉन्सेप्ट रिटर्न के अंदर। और अब जो अभी तक डिपार्टमेंट में जो 15 जनवरी बोल रहे, बट आई डाउट कि 15 जनवरी के अंदर ये एप्लीकेबल स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज टिल नाउ दे आर एवरी डे दे आर गोइंग विद द सीबीडीटी टू फाइनलाइज द दिस रिटर्न फॉर्मेट। जो 26Q फॉर्मेट है, 27Q फॉर्मेट है, दे आर कमिंग अप विद द मेजर चेंजेस इन दैट ऑल्सो। तो वो जब तक फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक वो 15 जनवरी का जो ड्यू डेट है वो उनका पॉसिबल नहीं लग रहा है। यस सर। In new version also TDS certificate provision is there. It's there. So, though it has no meaning, but they are coming up with this provision because if the deductor has deducted a TDS return, has filed a TDS return and issued a TDS certificate, later on if the person has revised the return, then deductee has a proof कि ये मेरा TDS certificate आया हुआ है। तो deductee can fight with the department कि मेरा TDS deduct किया है इसने, और वो एक प्रूफ हो जाता है। 26A में जब वो रिवाइज करता है ना, तो इसमें इश्यू क्या आता है, प्लस और नेगेटिव दोनों दिख जाता है। तो वी आर नॉट श्योर कि वो किसके लिए रिवाइज हुआ है, बट एक बार आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, यू आर श्योर कि आपका इनकम है। आप डिपार्टमेंट के साथ बोल सकते हो मेरे पास सर्टिफिकेट आया हुआ है, क्योंकि 26A में हमेशा ऐसा आता है कि चाहे कोई भी रीजन से रिवाइज हो, प्लस माइनस और उसका नया एंट्री आ जाता है। तो 26A के बेसिस पे वी कैन नॉट फाइट इट, बट आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, यू आर 100% श्योर आपको, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ये भी बोला कि सर्टिफिकेट के बेसिस पर देयर आर मैनी कोर्ट केसेस जहां पर ये रूलिंग आया है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट की कॉपी है तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। देन डिपार्टमेंट विल फाइट विद द डिडक्टर कि क्यों नहीं किया। तो ऑल द सर्टिफिकेट्स, यस, ऑल द सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड फ्रॉम पोर्टल। आपको अगर कोई पेपर के ऐसे ही अपने कंपनी के सॉफ्टवेयर से प्रिंट आउट करके देता है कोई सर्टिफिकेट, इट इज ऑफ नो यूज, वो एक रद्दी का पेपर है आपके लिए।
जब तक वो पोर्टल से जनरेट किया हुआ नहीं है वो सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। Yes. Currently they will be continuing the 15 CACB provisions. कोई डिपार्टमेंट का ये मोटिव नहीं है कि स्ट्रक्चरल चेंज के अंदर कुछ फॉर्म्स को डिस्कार्ड करते। तो जैसे आपके पास अगर सर्टिफिकेट आ गया तो आप सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर यू कैन फाइट विद द असेसिंग ऑफिसर कि मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा है। और केस लॉ कितने केसेस के आए भी है कि अगर सर्टिफिकेट है तो आपको आपका क्लेम मिल जाएगा। देन डिपार्टमेंट विल चेंज विद द डायरेक्टर कि इसने चेंज क्यों किया। अगर 26 डेज रहता ना तो उसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है, तो वन कैन नॉट फाइट इट। तो आई ऑलवेज सजेस्ट माई क्लाइंट कि जैसे ही टीडीएस आया आप क्वार्टर एंड के बाद सर्टिफिकेट ले लो फॉर प्रूफ पर्पस। यस, no, in new provisions they are coming up with an option where deductee can file a claim कि ये मेरा टीडीएस डिडक्टेबल है। अगर डिडक्टी के पास डिडक्टर का डिटेल रहा तो वो एक क्लेम फाइल कर सकता है और उसके बेसिस के ऊपर डिडक्टर वेरीफाई कर सकता है। सो अभी क्या है कि जैसे मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है और मेरा सामने वाले ने पे नहीं किया है तो किधर भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्टली एओ के पास जाके फाइट करना पड़ता है। बट 2.0 के अंदर दे विल गिविंग अ राइट टू पर्सन कि वो अपना क्लेम रजिस्टर कर सकता है कि ये पर्सन ने मेरा इतना टीडीएस डिडक्ट किया है। सो फ्रॉम देयर देन दे विल फाइट विद द एओ। सी आप जो बात कर रहे हो वो है 61 में एक्ट का जो आईटीआर का फाइल जो फॉर्मेट है वो सेम है। ये जो भी रहेगा वो आईटीआर के अंदर रहेगा, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज एवरीथिंग वुड बी सेम ओनली। यस, नॉट डूइंग। यस यस, डिपार्टमेंट का मेन मोटिव था कि जहां पर भी ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है उसको रिमूव कर दे और टेक्नोलॉजी को ये करे। इनकम अक्रूड इन फर्स्ट ईयर, टीडीएस डिडक्टेड इन सेकंड ईयर, तो उसके लिए उन्होंने नया फॉर्म इशू करके रखा हुआ है पहले से ही। तो जो टाइम गैप का जो था वो उसके लिए पहले से फॉर्म देके रखा हुआ है। अगर आपका टीडीएस पहले हो गया है, इनकम बाद में है, तो आप अपने डायरेक्टली आईटीआर के अंदर कर सकते हो। आपका वाइस वर्सा केस है तो उसके लिए फॉर्म देके रखा हुआ है। तो वो सब प्रोसीजर सेम है। हाँ, ये अभी जो नए चेंजेस आएंगे, अब इसके अंदर ये भी आएगा कि अभी तक अपन सेक्शन नंबर डिडक्टिव के अंदर सेक्शन नंबर मेंशन करते हैं, बट नाउ सेक्शन तो है ही नहीं। सो दे विल आस्क द टेबल सीरियल नंबर टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इनकम। डिपार्टमेंट किसका इशू करता है? अगर आपका प्रोफेशनल में काटा हुआ है तो अगर और आपने अपने रिटर्न के अंदर 8% से क्लेम किया है, देन डिपार्टमेंट विल रेज द इशू। क्योंकि हाँ, इसके अंदर अभी तक डिपार्टमेंट का इसमें सॉल्यूशन यही रहेगा, यू हैव टू सेटिस्फाई योर एओ कि इट इज माय कॉन्ट्रैक्ट इनकम नॉट अ प्रॉफिट। आइदर सेटिस्फाई योर एओ और सेटिस्फाई योर डिडक्टर। दोनों में देख को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि मेरा जो है वो प्रोफेशनल में नहीं, इसमें काटिए। इन दिस केसेस जनरली आई एडवाइस माई क्लाइंट जो डिडक्टर रहता है उसको ये बोलता हूं, आपको टीडीएस काटना है 10% आप काटिए, सेक्शन नंबर 194C कीजिए। सो कल को अगर कुछ भी हुआ तो डिडक्टर इज सेफ। उसको तो खाली सेक्शन नंबर चेंज करना अपना बाद में रिटर्न के अंदर, उसका कोई पेनल्टी नहीं है। अगर 2 का 10 होता है तो डिडक्टर को डर लगता है कि यार मेरा शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस आ जाए। तो इन दिस केसेस आई एडवाइस माई क्लाइंट, आप 10% काटिए और सेक्शन 194C दिखाइए। हाँ, जो एनुअल रेंट जो इंडिविजुअल पे करता है अदर देन इंडिविजुअल हु इज हैविंग बिजनेस इनकम और उसका टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है,
1 करोड़ और 50 lakhs का जो भी लिमिट है उससे कम है, तो अगर 50,000 से ज़्यादा मंथली रेंट है तो इंडिविजुअल को ऑन अ ईयरली बेसिस टीडीएस डिडक्ट करना है। और वो ईयरली बेसिस पर भी कैसा है, अगर मेरा रेंट पहले कंप्लीट हो रहा है, रेंट एग्रीमेंट जनरली अगर मेरा रेंट एग्रीमेंट दिसंबर तक है तो मैं दिसंबर तक का कंसोलिडेट करके एक टीडीएस रिटर्न फाइल करूंगा। और अगर मेरा रेंट अगले साल तक है तो मैं मार्च तक का चेंज करूंगा। हाँ, इसके अंदर अभी मेजर चेंज दे आर कमिंग अप इज दैट कि जो टीडीएस कैलकुलेशन जो है वो रेट वाइज कैलकुलेट नहीं होएगा। जो 2.0 के अंदर जो 2.1 के अंदर जो मेजर इशू आता है 194 जो भी अपने पैन बेस्ड रिटर्न है, जैसे 194M हो गया, 194IA हो गया, 26QB QC QD, उसके अंदर अगर आपने एक्स्ट्रा टीडीएस काट लिया तो वो एक्स्ट्रा टीडीएस आपको रिफंड क्लेम करना पड़ता था, बिकॉज वो टीडीएस रेट वाइज कैलकुलेट कर लेता था। बट नाउ इन 2.0 दे हैव पास वो एक अपना उन्होंने फाइन कर लिया है कि नहीं अब हम रेट वाइज नहीं करेंगे, जितना टीडीएस काटा है उतना सामने वाले को पूरा का पूरा क्लेम मिलेगा। सो इट वुड बी ईजियर टू क्लेम अ रिफंड। अगर आपने ज़्यादा भी काट लिया तो आपको ईजी हो जाएगा, बट ये 2.0 के अंदर है, अभी नहीं है। अभी आपको अगर 2.2% है तो 2% से ही काटना है। 2.10 भी किया तो भी आपको एक्सेस जो भी अमाउंट है वो आपके अमाउंट के अंदर ऐसे रिफंड दिख जाएगा, और उसका रिफंड का प्रोसीजर जो है वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। हाँ, प्रेजेंटली डिडक्टर क्लेम करता है कि अगर मैंने एक्स्ट्रा काटा है, मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा काटा है, तो 10,000 क्लेम करने के लिए मुझे कम से कम 10 चक्कर डिपार्टमेंट के काटने पड़ते हैं। पर यही अगर डिडक्टिव रहता है तो डिडक्टिव को कुछ नहीं करना पड़ता है, वो खाली अपना राइटर में फाइल करा और रिटर्न क्लेम हो जाता है। सर इट डिपेंड अपॉन के उसका नेचर ऑफ एग्रीमेंट क्या है। अगर सिंपल वेयरहाउस है, सिंपल वेयरहाउस है, उसमें उन्होंने एक एरिया एलोकेट करके रखा हुआ है कि दिस एरिया विल बिलोंग टू दिस, तो 194I लगेगा। उन्होंने कोई भी एरिया एलोकेट नहीं करके रखा हुआ है, उन्होंने बोला कि नहीं हम आप जो भी आएगा वो स्टोर कर देंगे, तो 194C हो सकता है। तो इट डिपेंड अपॉन का आपका नेचर ऑफ एग्रीमेंट क्या है। अगर नेचर आपका नेचर के अंदर यूटिलाइज ऑफ स्पेस दिख रहा है 194I हो गया, नेचर अपने को यूटिलाइज अपना सर्विस दिख रहा है तो 194C हो गया। It is a service type. Then one. Yes, sir. No. डिपार्टमेंट विल नेवर कम। अगर आप डिपार्टमेंट को कम पैसा देते हो तो डिपार्टमेंट आपके पास आता है, अगर आप डिपार्टमेंट को ज्यादा देते हो तो नहीं है। नहीं, डिपार्टमेंट कभी भी टीडीएस का बेस बना के इनकम नहीं बताता। आई हैव सीन मैनी केसेस जहां पर टीडीएस जो है ना 50% डिडक्ट हुआ है, 80% डिडक्ट हुआ है। इस केसेस के अंदर डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ ये जरूर कर सकता है, अभी 10% तो फिर भी नॉर्मल है, जहां पर 80% 90% होता है वहां पर डिपार्टमेंट एक बार एक नोटिस निकाल के देता है क्लैरिफिकेशन के लिए कि आपने वाकई में 90% डिडक्ट किया है या आपसे मिस्टेक हुआ है। क्योंकि ये 80% 90% कौन से केसेस में हो रहा था, जनरली नहीं इंटरेस्ट बचाने के लिए 80% 90% उसी केसेस में हो रहा था जहां पर फ्रॉड हो रहा था, जहां पर जैसे अभी एक सिंपल ये था मुंबई महेंद्र का एक सीए था, उसके आर्टिकल क्या करता था, रिटर्न फाइल किया, टीडीएस रिटर्न फाइल हुआ, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू हुआ, उसके बाद वो टीडीएस रिटर्न को चेंज कर देता था, वो अपने रिलेटिव के अंदर दिखा देता था क्रेडिट, और जहां पर टीडीएस 10 रुपीज है तो इनकम वो 11 रुपीज दिखाता था, कि अगर इनकम वो 1000 दिखाएगा तो भी इनकम का नोटिस आ जाएगा, पर अगर मैंने इनकम 11 दिखा के रखी हुई है तो कोई इशू नहीं है। तो इनकम 11 दिखाता था, टीडीएस 10 दिखाता था। तो ये कंसोलिडेटेड बार बार चेंज हो रहा था, तो डिपार्टमेंट ने एक वेरिफिकेशन के लिए पहले तो एओ को अपने उसको डिडक्टर को पूछा कि आप अपना रिटर्न क्यों रिवाइज करते हो बार बार। तो डिडक्टर बोला नहीं सर आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मैं कोई रिवाइज करता ही नहीं हूँ, जो भी करता है मेरा सीए देखता है। सीए को पूछा नहीं सर हमने कभी रिवाइज नहीं किया। देन दे हैव ट्रैक कि कौन से आईपी से चेंज हो रहा है, कितने बजे चेंज हो रहा है,
तो जब चेक किया तो मालूम पड़ा कि सीए के ऑफिस से ही चेंज हो रहा है, और जो आर्टिकल है वो डीएसी मिसयूज करके चेंज कर रहा था। तो ये एक छोटा केस निकला। ऐसा सिमिलर केस जो है वो निकला था हैदराबाद के अंदर, पर उसके अंदर वो तो करोड़ों का था, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1000 करोड़ का उसमें फ्रॉड हुआ था। बट उसके अंदर उन्होंने यूज किया था एआईएन नंबर। अभी गवर्नमेंट में क्या, अभी जनरली व्हेन वी आर पेइंग द टीडीएस चलान, अपन टाइम बेस्ड टीडीएस चलान पे करते हैं, तो वैसे ही गवर्नमेंट के जो डिडक्टर है उनको एआईएन नंबर इशू करके रखा हुआ है। तो जब वो एआईएन इशू करते हैं तो एआईएन बेसिस के हिसाब से वो लोग टीडीएस 10 नंबर के ऊपर टीडीएस चलान अपना फाइल करते हैं। जो उनका जो टीडीएस रिटर्न होता है वो उसके अंदर फाइल करते हैं, और फिर उसके बाद टीडीएस रिटर्न फाइल होता है। तो एआईएन नंबर के डुप्लीकेट जो भी एआईएन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे, जिन्होंने एक बार एआईएन ले लिया उसके बाद बंद हो गए, तो जो फ्रॉड था नॉन सीए था, उसने ट्रैक किए पहले तो कौन कौन से एआईएन नंबर है जो यूज नहीं हो रहा है, फिर उस एआईएन नंबर के हिसाब से उसने ना ये रिटर्न फाइल किए चालान्स के, और फिर उसने टीडीएस क्लेम किया। तो टीडीएस क्लेम करते समय उसने वही दिखाया 90% के आसपास उसने इनकम दिखाया, 100 रुपीज इनकम, 90 रुपीज टीडीएस। उससे डिपार्टमेंट को समझ आया कि ये एक पर्टिकुलर एआईएन के अंदर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। देन दे हैव डिग आउट, तो उनको मालूम पड़ा कि ये इसके अंदर लास्ट 3-4 साल के अंदर मोर देन 1000 करोड़ का टीडीएस क्लेम हुआ है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट के अंदर, और ये सब फ्रॉड है। तो इसके लिए जहां पर भी टीडीएस रेट जो है वो 10% या 20% तक रहता है, डिपार्टमेंट डजंट डू एनीथिंग। पर जहां पर ज्यादा होता है वहां पर एक क्लैरिफिकेशन के लिए वो एक बार चेक कर लेता है। अगर आपका एक बार आपने वंस इन अ वाइल किया, नॉट एन इशू, कंटिन्यूस रहा, बिकॉज नाउ डेज एवरीथिंग इज ऑन अ सिस्टम वाइज बेसिस। तो सारा चीज ट्रैक हो रहा है, सब चीज एनालाइज हो रहा है। तो कोई भी गलत चीज होता है डिपार्टमेंट को तुरंत रेड फ्लैग हो जाता है। रेड फ्लैग होते ही डिपार्टमेंट विल कम टू यू कि आपने ये क्यों किया। तो वो आपका टीडीएस रेट से कोई इशू नहीं आएगा। सिर्फ एक ही है कि टीडीएस अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन इनकम अमाउंट। वो एक लॉक लगा हुआ है, वो लॉक नियर फ्यूचर भी एप्लीकेबल रहेगा। एनी अदर क्वेरी? यस। नो, इन केस ऑफ एम्प्लॉइज ऑन द सैलरी, उसमें अभी तक ये चेक, क्योंकि उसमें रेट डिफाइंड नहीं है उसमें हो, हाँ, बट उसके अंदर भी ये चेक जरूर लगा हुआ है कि आप जो मंथ की सैलरी में टीडीएस दिखा रहे हो वो आप उस इनकम से ज्यादा नहीं दिखा सकते। जैसे अगर आपने पूरे साल के अंदर टीडीएस नहीं काटा, आप सिर्फ मंथ ऑफ मार्च में काट रहे हो, तो मंथ ऑफ मार्च में काट रहे हो, आपने अगर पहले साल के अंदर पहले जितने भी रिटर्न है उसके अंदर उसकी सैलरी दिखा के रखे हो, मंथली 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 सैलरी दिखा के रखे हो, फिर अगर आप मार्च में दिखा रहे हो तो वो एक लॉक आपको आ जाएगा कि टीडीएस अमाउंट वुड बी 1,20,000 2 लाख, बट जो सैलरी अमाउंट है वो उस मंथ का सैलरी रहेगा, तो आपको फाइल करने नहीं देगा, तो उसके अंदर वो लॉक रहेगा। पर ये चेक जो है, ये मतलब जहां पर वंस इन अ वाइल ट्रांजेक्शन रहते हैं वहां पर डिपार्टमेंट नॉट डूइंग एनीथिंग, पर जहां पर ये ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंट रहते हैं, जैसे आपने ये दिखाया 90% ऑफ द टीडीएस दिखाया, तो ये एक आधा ट्रांजेक्शन रहेगा, या वो चेक करेगा पूरे साल में आपने उसका कितना इनकम दिखा के रखा हुआ है, तो वो उसमें इशू नहीं आएगा। तो उसके अंदर वो चलेगा, पर आपका वो लॉक रहेगा कि टीडीएस अमाउंट कैन नॉट बी इनकम अमाउंट, कैन नॉट बी मोर देन दैट इनकम अमाउंट। तो उस मंथ के अंदर आपका सैलरी कम पड़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोई पुराने सैलरी के अंदर से उतना अमाउंट लेस करना पड़ेगा, और ये मंथ में उसका अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट वो 100% का लॉक हो जाए। So, any queries regarding new TDS provisions or old TDS provision? Open to it. Yes, sir. 197 का जो एप्लीकेशन जो है वो सर टेबल 4 के अंदर आया है, तो टेबल 4 के हिसाब से 15G 15H भी एप्लीकेबल रहेगा, एंड इवन आपका जो लोअर डायरेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो उसके हिसाब से आ जाएगा। यस, एपीआई अभी जो एक्सेस आएगा वो मेजॉरिटी जो है ना वो बड़े डायरेक्टर को आएगा, छोटे डायरेक्टर के लिए अभी तक एपीआई का दे आर नॉट प्लानिंग, पर ये है कि 2.0 के अंदर स्मॉल डायरेक्टर कैन फाइल द रिटर्न डायरेक्टली ऑन द वेबसाइट।
एलडीसी का सर्टिफिकेट जो है ना वो डायरेक्टली डिडक्टर को अपने इसके ऊपर एपीआई इसके अंदर दिखता है, ट्रेसिस लॉगिन पोर्टल के अंदर वो डाउनलोड कर सकता है किसने क्या सर्टिफिकेट दिया है. आपको मैनुअल सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड. रेट वुड बी 10% ओनली. रेट में कोई चेंज नहीं किया सर. रेट जो पहले एप्लीकेबल था वो एप्लीकेबल ही रहेगा. रेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है. Yes, sir. Any other query, sir? Thank you, everyone. Thank you so much, Ravi Bhai, for this insightful seminar. And we can take this thing from here onwards only, that this seminar being for the new act, when so much people in large participate with their queries for old and new, we know we have hired or we have got the best speaker for the TDS. So thank you so much, Ravi Bhai, for addressing all the queries. I would request Sandeep Bhai to kindly give a heartfelt vote of thanks to our speaker and convener, CA Ravi Bhai. Thank you, Viral. On behalf of the study circle, I sincerely thank CA Ravi Soni for the clearly explaining the changes in the TDS provisions under the new Income Tax Act. Your fluency and the command over the subject, along with the well-structured comparative presentations, made the session easy to follow and highly effective. The clarity provided in the question-answer sessions has helped the members to gain the confidence, and everyone can now at least tick the TDS provisions as completed in their study of the new income tax provisions. We truly appreciate your time, effort and valuable contributions. With this, I request all the members to extend hearty vote of thanks to our convener and speaker of the day, Sri Ravi Soni. Thank you, Ravi. Thank you, members. Thank you. We will see you in the next seminar on the new act on Saturday. That is on NGO and charitable trust and section 4569 and its impact on DTAA. Thank you. हाँ ले